Dear students, in the previous lecture, we discussed one of the best definition of accounting as per books. In this lecture, I am going to discuss the simplest definition of accounting ever. इससे सिंपल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती. ये डेफिनेशन आपसे सुन के साक्षात भगवान और अच्छे इंसान बड़े खुश होंगे, ब्लेसिंग्स देंगे आपको. लेकिन बाकी सब क्या करेंगे? 3 इडियट्स मूवी देखी है तो सोच समझ के इस डेफिनेशन का यूज़ कीजिएगा. जब भी आप अकाउंटिंग करें मेरी एक बात याद रखिएगा, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर. इससे सिंपल डेफिनेशन हो नहीं सकती. कोई पूछे आपसे अकाउंटिंग मतलब क्या, आप एक ही जवाब दीजिएगा, अकाउंटिंग मतलब हिसाब. किसी भी चीज़ का हिसाब इस अकाउंटिंग. इससे सिंपल क्या हो सकता है? इससे सिंपल हो ही नहीं सकता. तो हिसाब मेंटेन करना इस अकाउंटिंग करना. डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस with a simplest example. Dear students, you must have heard these words earlier. Words are books of accounts. What? Books of accounts. And you must have also heard these words, Hindi words, hisab, kitab. What? Hisab, kitab. Now we are equating these words of English and Hindi. And let us correlate them. बुक्स मीन्स किताब. तो क्या प्रूफ हो क्या? अकाउंट्स मीन्स हिसाब. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हिसाब किताब. ऐसे बुक्स जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ऐसे बुक्स जिसमें हिसाब मेंटेन किया जाता है. हैंस प्रूव्ड कि अकाउंट्स इज हिसाब. प्लीज ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू इंग्लिश and you will get the proof of my innocence. So, I have proved in the most simple way that accounts means hisab. Let us feel this subject and let us take some concrete step towards it. Suppose this line represents a particular day and at the beginning of the day आपके पास 100 rupees cash था. How much? 100 rupees. During the day, at this moment, you received 400 from your father, Papa, and at this moment you went on to purchase pizza and paid 450 rupees. Tell me, what is the amount of cash you are left with at the end of the day? 100, you received 400 more, so the amount reached 500, paid 450, so you are left with 50 rupees at the end of the day. I can say now, this is opening balance and this is closing balance. So as we can see, few events took place during the day, right? Now, if I tell you to write these amounts, इसका हिसाब दीजिए पूरे दिन क्या क्या हुआ, जस्ट अमाउंट्स ही बताने हैं, तो शायद आप ऐसा लिखेंगे, 100 रुपीज़ आपके पास पहले थे, you received 400 from पापा and out of that you paid 450 towards pizza, you are left with 50 rupees cash at the end. ये आप क्या लिख रहे हैं? ये 100 क्या है? कैश. 400 क्या आया? कैश. गया कितना? 450 कैश. तो बचा कितना? ये क्या बचा है? कैश. तो आप किसके बारे में ये लिख रहे हैं? कैश के बारे में. बिलीव मी और नॉट, आपने ये कैश का अकाउंटिंग किया है. सर ये अकाउंटिंग है? यस, ये अकाउंटिंग है. वॉट वी अकाउंटेंट डू इज टू फॉलो a more systematic and sophisticated way to present this information. Now, if I tell you to present this same information with some greater details, आप शायद ऐसा लिख सकते हैं, amount with details, 100 rupees opening balance, opening cash balance 100 rupees, received from father 400, pizza purchase in that you paid, therefore minus 450, so closing balance left 50, right? Now compare this one with this one. Yeah, both are similar, but इसमें information भी है. ये 100 क्या था? ओपनिंग बैलेंस. ये 400 क्या था? ये डिस्क्रिप्शन मिल रहा है. तो ये थोड़ा और सिस्टमैटिक हो गया, राइट? नाउ वी कैन प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन विद अ यूज ऑफ एन इक्वेशन. ओपनिंग बैलेंस plus amount received from papa
less amount paid towards purchase will give us the closing balance. This is one and the same thing ना? Yes, an alternative presentation. अब ये माइनस है, अगर इक्वेशन के इस साइड लेके जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम पापा इज इक्वल्स टू, ये इस साइड चला गया, पिज्ज़ा परचेज प्लस क्लोजिंग बैलेंस. दिस इज वन एंड द सेम थिंग ना. ऑल्टरनेटिव तरीका है. सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट वेट एंड वॉच, मज़ा आने वाला है. हमने क्या किया, जो पॉजिटिव था वो एक साइड रख दिए, जो नेगेटिव थे वो एक साइड रख दिए इक्वेट करने के लिए. ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. मैंने बताया था ना, हम अकाउंटेंट क्या करते हैं, हम परमानेंट काम करते हैं, सिस्टमेटिक काम करते हैं, सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं. तो फील कीजिए, हमने एक घर बनवा दिया, उस घर में 2 रूम कंस्ट्रक्ट करवाए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. करेक्ट? सर 2 ही क्यों बनवाए? वेट एंड वॉच, सब पता चलेगा. तो हमने एक घर बनवा दिया, उसमें देखिए एक घर बनवाया, उसमें 2 रूम बनवाए हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड. ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हमने. इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव साइड बोल दूं, राइट हैंड साइड को नेगेटिव साइड बोल दूं, प्लस एंड माइनस. सर ऐसा क्यों? जस्ट वेट एंड वॉच. तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट, प्लस साइड, माइनस साइड. अब इस घर में लोग रहने आएंगे, ये आएंगे, जो प्लस वाले आइटम है इस साइड आ जाएंगे और जो माइनस वाले आइटम है इस साइड आ जाएंगे. इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इधर आ जाएगा और जो राइट हैंड साइड था वो इधर आ जाएगा. तो हम इन्हीं को ही एकोमोडेट कर सकते हैं ना इस घर में. इन चारों को इस घर में कैसे एकोमोडेट करें? ये प्लस वाले इधर आ गए, ओपनिंग बैलेंस 100, अमाउंट रिसीव फ्रॉम पापा 400, पिज़्ज़ा परचेज 450 एंड क्लोजिंग बैलेंस 50. अब ये घर थोड़ा अधूरा लग रहा था, ये घर बन गया था 2 साइड. अब इसमें थोड़ा फर्निशिंग करें, फर्नीचर बनवाएं थोड़ा सा. और ये जो लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस रिसीव फ्रॉम पापा एक साइड रखा, पिज़्ज़ा परचेज क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साइड रखा. ये एक्चुअली क्या था? ये तो डिटेल्स थे, डिटेल्स को पर्टिकुलर्स भी बोल सकते हैं. और ये क्या था? अमाउंट. हाँ, तो अमाउंट लिख दिया. तो एक्चुअली हमने क्या किया है, ये जो हमने बनाया ये हिसाब है. किसका हिसाब था? हिसाब मीन्स अकाउंट, अकाउंट मीन्स हिसाब, हिसाब मीन्स अकाउंट, अकाउंट मीन्स हिसाब. लेकिन किसका हिसाब है? ये 100 क्या है, 400 क्या है, क्या आया, क्या गया? तो ये कैश का हिसाब है. तो इसको कहा जाता है एक अकाउंट. इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कहा जाता है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड. 2 ही क्यों बने? हाँ, क्योंकि या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, इसलिए 2 ही साइड है. इसी कारण से हमने 2 रूम बनाए थे, गिव एंड टेक, डेबिट एंड क्रेडिट. तीसरा इसलिए कोई साइड होता ही नहीं है. आप सब ब्रिलियंट हैं. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर प्लस इधर क्यों लिखा, माइनस इधर क्यों लिखा? इधर प्लस और इधर माइनस नहीं कर सकते थे क्या? यस, कुछ चीज़ों में हम ऐसा भी करेंगे. मजाक में बोलूं तो मैंने ये घर बनाया अपने वास्तु के हिसाब से. आप अपने वास्तु शास्त्र के हिसाब से इधर प्लस इधर माइनस लिख सकते हैं. आगे हम देखेंगे. बच्चों एक बात बताइए, चलने के लिए हम कितने पैरों का यूज़ करते हैं? सर 2, तभी ठीक से चल पाते हैं. ठीक वैसे ही अकाउंट्स भी ना, अकाउंटिंग भी चलता है 2 पैरों के सहारे. गिव एंड टेक, दोनों पैर जरूरी हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट लेग राइट लेग. गिव एंड टेक, गिव एंड टेक को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लेन देन. पूरा अकाउंटिंग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. गिव एंड टेक, लेन एंड देन. दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया को हमने दिया क्या. हाँ, ये कैसे? हाँ, एक सॉन्ग है, आगे कनेक्शन निकालूंगा. और लेन या गिव को ही हम बोलते हैं डेबिट, और टेक देन को हम कहते हैं क्रेडिट. आ गया डेबिट क्रेडिट. सर ये वर्ड कहाँ से आए? मैं इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये वर्ड आए कहाँ से. देवी माँ तो सपने में नहीं आई होंगी ना, बच्चा उठो 2 ही होते हैं डेबिट और क्रेडिट.
ये कहाँ से आए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं DR और CR। सर ये कैसे DR और CR? इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा, इसका भी ओरिजिन बताऊंगा, हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, है ना, सिस्टमेटिक मैनर। डियर स्टूडेंट्स, द इक्वेशन वी प्रिपेयर्ड अर्लियर, उसको ऐसा भी तो विजुअलाइज कर सकते हैं। ओपनिंग प्लस अमाउंट रिसीव्ड लेस अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। दिस इज आइंग इनकमिंग, दिस इज जाइंग, दिस इज बच जाइंग। आइंग माइनस जाइंग इज इक्वल्स टू बच जाइंग। आइंग माइनस जाइंग इज इक्वल्स टू बच जाएंगे। इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इज क्लोजिंग बैलेंस। बेटा आपने रिचार्ज करवाया 500 GB का, 480 GB आपने यूज कर लिया तो बचेगा कितना? 20 GB। कितना सिंपल है, आइंग माइनस जाइंग इज इक्वल्स टू बच जाएंगे। इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इज इक्वल्स टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और उसी को रीसेट करें तो आइंग इज इक्वल्स टू जाइंग प्लस बच जाइंग। आइंग इज इक्वल्स टू जाइंग प्लस बच जाइंग। ये पॉजिटिव वाले आपस में दोस्ती कर रहे हैं, नेगेटिव वाले आपस में दोस्ती कर रहे हैं। ये कैश का अकाउंट है, कैश का हिसाब। कैश आ भी सकता है, ये आ रहा है, कैश जा भी सकता है, ये जा रहा है। तो आइंग माइनस जाइंग इज इक्वल्स टू बच जाइंग।